are moments in life that we consider defining moments. Moments that change the course of our lives, change who we are as a person, and set us on a different path. This could be a moment of success, an achievement, or even a loss or a disaster. The same is true for human history. In 2020, we had one such defining moment when the whole world was in the grip of a pandemic. But at the beginning of the 21st century, there was a moment that shook the world and brought a superpower to its knees, and the world has not been the same since. Hello Mind Warriors, this is Mind Wars Present पिक्चर ऑफ द डे। जैसे जैसे हम आपको इस पजल के पीसेस दिखाते जाएंगे, आपको गेस करना होगा कि ये कौन सा फोटोग्राफ है। सो वेलकम टू पिक्चर ऑफ द डे। Here is the first piece of the puzzle. Some events become so historic that people remember where they were when they first heard about it. I was of course not born then, but everyone I know who was alive then remembers clearly where they were. They talk about the shock they experienced when they first heard about it. उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ और लोगों को लग रहा था कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। खैर वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत तो नहीं आई, मगर उस दिन के कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया में देखे गए। उस दिन 2977 इनोसेंट लोगों की जान गई एंड इट स्टार्टेड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनहंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड विद द एम ऑफ कैप्चरिंग ओसामा बिन लादेन. It created anxiety about national security, had economic and even cultural impact in the times to come. This was the deadliest terrorist attack on American soil, and such was the impact that the attack itself was identified just as the date 9/11 or the September 11 attacks. Now it's time to reveal the next piece of the puzzle. Until 1973, the Empire State Building in New York held the title for the tallest building in the world for 40 years. मगर उसी साल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या WTC के 2 टावर्स का काम खत्म हुआ और दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग का टाइटल उन बिल्डिंग्स को मिल गया। WTC के 2 टावर्स थे, नॉर्थ टावर और साउथ टावर, जिसमें से 1368 फीट की हाइट का नॉर्थ टावर साउथ टावर से बस 6 फीट ज्यादा ऊंचा था। मगर 13.4 लाख स्क्वायर फीट में फैले हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स में 5 और बिल्डिंग्स थी। In 1974, a French tightrope walker named Philippe Petit managed to sneak in and tied a wire between the roofs of the twin towers and managed to tightrope walk across them for 45 minutes continuously. It was called the artistic crime of the century and made the newly built World Trade Center even more popular. The WTC towers were an important part of the New York skyline, and they were featured in more than 450 films. It would not be wrong to say that the Twin Towers were a part of New York's identity. अब इस तस्वीर का एक और हिस्सा आपके सामने आएगा। जब हम 9/11 अटैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ट्विन टावर्स की याद आती है, मगर इसके अलावा भी 2 प्लेन्स क्रैश किए गए थे। एक US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर्स पेंटागन पर, जहां 184 लोगों की जान गई, और दूसरा पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड में जिसमें 40 लोग मारे गए। कहा जाता है कि उस दूसरे प्लेन का निशाना शायद व्हाइट हाउस या कैपिटल बिल्डिंग था, मगर प्लेन के पैसेंजर्स ने बड़ी बहादुरी से हाईजैकर्स को ओवरपावर करके प्लेन को एक ओपन फील्ड में क्रैश करवा दिया। ऑफ कोर्स मेजर कैजुअलिटीज तो ट्विन टावर्स के क्रैश से ही हुई, जहां करीब 2750 लोग मारे गए। 14 सितंबर को जब प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश
क्रैश साइट पर पहुंचे तो रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे थे। प्रेसिडेंट बुश ने लाउड स्पीकर पर बात करना शुरू किया तो किसी रेस्क्यू वर्कर ने कहा कि वो कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। टू दिस द प्रेसिडेंट रिप्लाइड, I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear from all of us soon. इन अटैक्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफी बुरा था। According to some estimates, the overall economic loss due to the attacks is considered to be roughly $2 trillion. While the nation was still in mourning, the US government was getting ready to punish the culprits of 9/11. Time to reveal another piece of the puzzle, and here it is. अटैक्स के कुछ घंटों बाद ही यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने पता लगाया कि इस अटैक के पीछे अल कायदा का हाथ था और उनका लीडर ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छुपा बैठा था। America instantly declared war on Afghanistan when they refused to hand over Osama bin Laden. Within months, thousands of militants from the Taliban and Al-Qaeda were killed by US attacks and the rest went into hiding. बिन लादेन खुद बड़ी मुश्किल से यूएस ट्रूप से बच निकला। पूरी दुनिया में अल कायदा सिंपथाइजर्स और टेररिस्ट्स के खिलाफ अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। दिसंबर 2001 तक यूएस फोर्सेस ने इतने सारे तालिबान प्रिजनर्स को अपने कब्जे में ले लिया था कि अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन प्रिजनर्स को वो रखेंगे कहाँ। और फिर यूएस डिफेंस ने इन प्रिजनर्स को क्यूबा की ग्वांटानामो बे नाम के एक डिटेंशन सेंटर में रखने का फैसला किया। मगर इस सब के बावजूद बिन लादेन उनके हाथ नहीं आया और अगले 10 साल तक वो छुपा रहा। टाइम टू सी अनदर पार्ट ऑफ द फोटोग्राफ। Did you know that the 2001 attack was not the first one on the World Trade Center? In 1993, Middle Eastern terrorists exploded a bomb in the underground parking of the Twin Towers, and the idea was to try and topple one building in such a way that it would knock down the second one. Fortunately, it did not work and there were only 6 casualties. क्या आप जानते हैं कि WTC पर 9/11 अटैक्स के बाद उस डेब्रिस को साफ करने में कितना वक्त लगा? With people working day in and day out, it took 9 months to clear out 1.8 million tons of the wreckage. ट्विन टावर्स पर हुए अटैक के तो कई वीडियोस थे, मगर पेंटागन पर हुए अटैक्स के वीडियोस सिर्फ 2006 में पब्लिकली रिलीज किए गए थे। क्या आप जानते हैं कि 9/11 अटैक्स के बाद रेस्क्यू वर्कर्स में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। द फेमस पॉप स्टार माइकल जैक्सन was in New York performing at the Madison Square Gardens on the 10th of September, one day before the attack took place. That night, he slept late, chatting with his mother and sister, and that is why he overslept the next morning and missed a meeting that was to be held at the Twin Towers. Planes filled with jet fuel crashing into offices with documents and furniture. इसका रिजल्ट तो आप सोच ही सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि ट्विन टावर्स के डेब्रिस में लगी आग को बुझाने में न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट को 99 डेज लगे। चलिए इस तस्वीर का एक और हिस्सा आपको दिखाते हैं। 9/11 अटैक्स में कुल मिलाकर 19 टेररिस्ट्स हाईजैकर्स बन के 4 फ्लाइट्स में घुसे थे। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 और यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 का टारगेट द ट्विन टावर्स। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 जाकर पेंटागन के साउथ वेस्ट साइड में क्रैश हुई और वहां पर 125 मिलिट्री पर्सनल और सिविलियंस के साथ साथ फ्लाइट में सफ़र कर रहे 64 लोग भी मारे गए। कुछ ही देर में फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने पूरे देश में ग्राउंड स्टॉप अनाउंस कर दिया, मतलब कि कोई भी प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 का टेक ऑफ
डिले होने की वजह से लोगों को ट्विन टावर्स के क्रैश के बारे में मोबाइल फोन्स के थ्रू ऑलरेडी पता चल चुका था। इस फ्लाइट के टारगेट के बारे में तो किसी को नहीं पता था, मगर उसमें सफ़र कर रहे पैसेंजर्स को जब पता चला कि हाईजैकर्स का प्लान इस प्लेन को किसी पॉपुलेटेड एरिया में क्रैश करने का है, तो उन्होंने हाईजैकर्स से लड़ने की ठान ली। उन सब ने अपनी पूरी जान लगा दी और शैंक्सविल, पेंसिल्वेनिया के पास एक ओपन फील्ड में प्लेन को क्रैश करवा कर ना जाने कितने लोगों की जान बचा ली। यूनाइटेड 93 में पैसेंजर्स और क्रू को मिलाकर 40 लोग थे और 4 टेररिस्ट्स। उसी लोकेशन पर यूनाइटेड फ्लाइट 93 के पैसेंजर्स की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है। अब इस तस्वीर का एक और हिस्सा रिवील किया जाएगा। 2002 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पूरा डेब्रिस क्लियर कर दिया गया था, तो 2 इंडिपेंडेंट कॉम्पिटिशन्स लॉन्च किए गए थे टू इनवाइट डिजाइन आइडियाज। द फर्स्ट वन वाज फॉर अ सिंगल टावर called the Freedom Tower that would replace the twin towers, and the other was for a memorial that would be built to honor the victims of 9/11. उस बिल्डिंग की हाइट पहले से ही डिसाइड कर ली गई थी, 1776 फीट, क्योंकि 1776 अमेरिका के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है। This is the year when the Declaration of Independence was signed और अमेरिका के 13 कॉलोनीज ने अनाउंस कर दिया कि वो आज़ादी चाहते हैं। Later, the tower was renamed as One World Trade Center और 2014 में उसे इनॉग्रेट किया गया। इसी टावर का एक ऑब्जर्वेशन डेक है जो ठीक 1368 फीट पर है, जो WTC के नॉर्थ टावर की एग्जैक्ट हाइट थी। 9/11 अटैक्स में आसपास लगे हुए सारे पेड़ पौधे पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, एक्सेप्ट फॉर वन ट्री दैट वाज कंप्लीटली डग आउट फ्रॉम द डेब्रिस एंड प्लांटेड अगेन। आज वो पेड़ वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास लगा हुआ है और उसका नाम है सर्वाइवर ट्री, एंड इट सिग्निफाइज सर्वाइवल एंड रीबर्थ। और इसके अलावा इस टावर के सामने 2 बड़े स्क्वायर पूल्स हैं जो ठीक उसी जगह पर है जहां कभी नॉर्थ और साउथ टावर हुआ करते थे, और इन पूल्स के पास की दीवारों पर हर उस इंसान का नाम लिखा है जिसने WTC अटैक में अपनी जान गंवाई थी। ये है इस पजल का सेकेंड लास्ट पीस। More than 20 years later, those who were around to witness the 9/11 attacks still consider it one of the most emotional moments that the country has faced, and for many years all attempts to capture the man behind it all failed. But in 2010, under the presidency of Barack Obama, CIA traced a courier in Abbottabad, Pakistan with strong suspicion that Osama was nearby. वहाँ एक पर्टिकुलर कंपाउंड था जिसके सर्विलियंस के बाद CIA को शक हो गया कि ऐसा कस्टम मेड कंपाउंड किसी इंपॉर्टेंट इंसान के लिए बनाया जा सकता है। ओवरहेड सैटेलाइट्स और ड्रोन्स की मदद से उन्हें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि हो सकता था कि घर में छुप के बैठे लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। The way the CIA tracked Osama was that they kept tracking the compound and the clothes that were drying outside the house. उन कपड़ों को ट्रैक करके वो लोग ये पता लगा सकते थे कि घर में कितने लोग रहते हैं और किस जेंडर के। Over time, they realized that there is another family living in the house, and there was a suspicion that it was Osama and his family. Of course, this was not enough evidence to prove that Osama was there, but the mission was approved and the Navy SEALs went. The operation was a success, and they managed to execute Osama bin Laden after a manhunt that lasted for almost 10 years. After recovering thousands of documents from the compound, the team took bin Laden's body away and confirmed his identity through DNA test. उसके बाद उन्होंने इस्लामिक प्रैक्टिसेस के हिसाब से ओसामा की बॉडी को क्लीन करने के बाद नॉर्थ अरेबियन सी में दफन कर दिया। And now for the final piece of the puzzle. And here's the picture of the day.
the second plane crashing into the South Tower of the World Trade Center. American Airlines Flight 11 और United Airlines 175 दोनों ही बॉस्टन के लोगन एयरपोर्ट से 15 मिनट के डिफरेंस पर निकले थे लॉस एंजलिस के लिए। दोनों ही प्लेन्स में हाईजैकर्स ने कुछ ही देर बाद कटर्स और नाइफ्स की मदद से कुछ पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को जख्मी करके फ्लाइट को अपने कंट्रोल में ले लिया। जब फ्लाइट 11 नॉर्थ टावर में क्रैश हुआ तो देखने वालों को लगा ये शायद कोई एक्सीडेंट है, और फिर 17 मिनट बाद फ्लाइट 175 साउथ टावर में क्रैश हो गया। Everyone instantly knew that this was not an accident but a terrorist attack. Although the South Tower was struck later, the impact was at a lower part of the structure and hence it collapsed before the North Tower. More than 200 people died after falling off, either because they fell while escaping the building or they realized that there was no way to make it out. By 10 a.m. the South Tower was gone, and by 10:30 a.m. the North Tower also completely collapsed, and for the first time in almost 30 years the New York skyline was left without the twin towers. That's all for the picture of the day. तो Mind Warriors, कैसा था आज का picture of the day? One of the most televised and talked about terrorist attacks in the world, and you still didn't know so many things about it, right? अब कम्प्रिहेंसिव नॉलेज चाहिए तो मैं आपको सबसे अच्छा ऑप्शन बताती हूँ। माइंड वॉर्स ऐप पर जाइए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और हिस्टोरिक फोटो के साथ राइट हियर ऑन माइंड वॉर्स। सो देखते रहिए पिक्चर ऑफ द डे। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस व्हिच ब्रिज द गैप बिटवीन स्टडीज एंड योर बडीज, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.